Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Haris and I am a political science graduate. आज हम जिस बुक के ऑथर पर बात करने वाले हैं उसका नाम है डेविड एपेस्टाइन। डेविड एपेस्टाइन एक्चुअली एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है और ऑथर है और known for his work in the field of sports science and investigative reporting. He was born on the 17th June 1977 in New York City, United States of America. He then went to the Columbia University and did his bachelor degree in environmental sciences and astronomy. Then he did his master degree in environmental science and policy from the University of Wisconsin. Then Epstein career in journalism starts at a weekly sports journal. Then he worked there as a staff writer from 2007 to 2014. During this time, he focused on investigative reporting, particularly in the areas of sports, performance, and doping. Epstein gained widespread recognition for his 2009 cover story in the sports by the title The Perfect Runner, which explored the science behind the elite athletic performance. In 2014, he published his first book, The Sports Gene, Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance, which became the New York bestseller. Then the book delves into the genetics, training, and environmental factors that contribute to the athletic success, challenging the notion that the natural talent is the sole determination of achievement. Then Epstein has contributed to various publications like the New York Times Magazine, National Geographic, and ProPublica, etc. Then he was given the numerous he has given the numerous lectures and appeared as a guest on various podcasts and radio shows discussing his research and his findings. Epstein work extend beyond the sports science as he often explored the broader topics related to the talent development, education, and the nature of expertise. In 2019, Epstein published his second book, जो कि आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, The Range why journalists trump in a specialized word, which examines the advantage of a broad-based approach of learning and problem solving. The book argues that individuals who possess diverse skills and expertise tend to thrive in complex and rapidly changing environments. Epstein continued to work and speak on the topic related to science, education, and the development of expertise, sharing his insights with a wide audience. That's all about the author. Now over to you, Hussein. Thank you so much, Haris. अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वो बुक की समरी बयान करें। समरी एक्सप्लेन करने के बाद फ्लोर ओपन होगा और आप तमाम सके तो बारी बारी दस मिनट के वो अपने फोन पे बात कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सर। Thank you. Assalamu alaikum. Um, so, so I'm Ishtiyaq and I'm a learning experience designer. Learning experience designer का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि मैं एजुकेशन के कोर्सेज, एजुकेशन के वर्कशॉप्स डिज़ाइन करता हूँ इन कोलैबोरेशन विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स। मैंने लॉयर्स के साथ काम किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के साथ काम किया हुआ है, कोडर्स के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ। तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं और मैं उनसे डिस्कशंस करता हूँ और हम मिलकर कोई कोर्स एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, डिपेंड करता है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो इन शॉर्ट मेरा जो शौक है वो एजुकेशन के इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करने का। एंड I've done my master's from LUMS. मैंने LUMS से MPhil एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया हुआ है एंड आजकल मैं एक एजुकेशन कंसल्टेंसी लीड करता हूँ जिसका नाम है Audacity Labs। Audacity Labs में हम दूसरे जो इदारे हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उनके लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स डिज़ाइन करते हैं। सो हमारे पास इदारा आता है, इदारा हमें कहता है कि हम लॉ पर काम कर रहे हैं या हम
स्पेस पर काम करें, किसी भी जो मजमून पर वो काम कर रहे होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और हम आपके साथ मिलकर हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, आप हमारे लिए कोई कोर्स डिज़ाइन करें इस पर। और वो कोर्स की लेंथ, ड्यूरेशन वो टोटली डिपेंड करती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सो हम ऑडेसिटी लैब्स में ये करते हैं। या दूसरे अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो ऑडेसिटी लैब्स में हम क्रेजी एजुकेशनल आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं। हम ऑडेसिटी लैब्स में एजुकेशन को जिस तरह साइंस की लैब में साइंसदान साइंस के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो एजुकेशन के भी हम समझते हैं कि एजुकेशन के भी एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। अगर हम एजुकेशन के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो हमारे पास नए नए आइडियाज कैसे आएंगे? क्योंकि हम तो चाहते हैं ना, हमारा तो मसला ही तालीम का मसला है। अगर वो चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, नए मॉडल्स के साथ आना चाहते हैं, तो हमें तजुर्बात करने होंगे एजुकेशन के भी। तो ऑडेसिटी लैब में हम वो करते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं इस कम्युनिटी में, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ डिसिप्लिन से होता है, और उनका जो बैकग्राउंड होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। वो डिज़ाइनर्स भी होते हैं, वो साइंस के साथ भी शौक रखते हैं, आर्ट्स के साथ भी शौक रखते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। क्योंकि हमें किसी भी डिसिप्लिन का जो इदारा होता है या उसके साथ उसका जो ताल्लुक होता है, उसके साथ हमारा काम आ सकता है। तो हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ब्रॉड हो। सो आज की जो टॉक है उसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सो पहले हिस्से में मैं बुक की समरी एक्सप्लेन करूंगा आसान अल्फाज में जितना मुझसे हो सकता है, और दूसरा उसके बाद मैं जो बुक के पॉइंट्स हैं उनको कंटेक्चुअलाइज, जो हमारा जो लोकल जो जो हमारे जो मुल्क है, जो मसले हैं, उसके साथ मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। यानी जो जो पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं डेविड एप्स्टाइन ने अपनी किताब में, वो हमारे इस माशरे के साथ कैसे लिंक होते हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। तो वो उसकी मैं कुछ लोकल एग्जांपल्स दूंगा, कुछ सवाल रेस करूंगा, अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो इस किताब में जो चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दूसरा हिस्सा होगा उसका। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने किताब पर लेट्स से 1 घंटा डिस्कशन कर दी तो वो तो आप यूट्यूब पर उधर तो देख सकते हैं, लेकिन हमने अगर कॉन्टेक्चुअलाइज डिस्कशन कर ली तो वो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हम तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम यहाँ पर चेंज चाहते हैं। और फिर तीसरे हिस्से में मैं उसको कंक्लूड करूंगा, जो सजेशंस हैं मेरी तरफ से या जो सवाल हैं या जो भी समरी है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर एंड में, राइट? शेल बी वेट शकूक भाई? हाँ, अच्छा, नो अच्छा, श्योर। हेलो हेलो, इज इट फाइन? सही, ठीक है, सही है। सो मैं बुक की समरी से स्टार्ट करता हूँ। सो रेंज क्या चीज़ है? मैं कोशिश करूंगा मैं पूरी समरी आपको बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। असल में ऑथर जो है वो एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि एक इंसान के लिए अगर वो जिंदगी में कामयाबी चाहता है तो उसको मुख्तलिफ डिसिप्लिन एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ाना चाहता है उसे मुख्तलिफ मजमून एक्सप्लोर करने होंगे। अगर वो लेट्स से बायोलॉजी के तालिब इल्म है तो उसे आर्ट्स भी एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे डिजाइन एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे अदब एक्सप्लोर करना चाहिए। जितने भी डाइवर्स डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वो उसे करने चाहिए। ये ऑथर का मेन आर्गुमेंट है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये करें कि आप मुख्तलिफ डिसिप्लिन को अर्ली एज से अगर हो सके, अगर आपने अर्ली एज से नहीं किया तो आप बाद में उसे एक्सप्लोर करें, अगर आपको समझ आ जाए कि जी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इसका मेन आर्गुमेंट है। ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ मजामीन एक्सप्लोर करते हैं उसके लिए ऑथर एक वर्ड यूज करता है जर्नलिस्ट, राइट? ऐसे लोग जो कि 2 3 4 5 6 कामों में आप उन्हें एक्सपर्ट्स भी कह सकते हैं, कुछ लोग वाकई में एक्सपर्ट्स होते हैं ज्यादा कामों में, जिनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पॉलीमैथ्स, आपने शायद सुना हो। तो उनको वो जर्नलिस्ट कहता है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जर्नलिस्ट होते हैं लेकिन वो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होते, राइट, लेकिन उन्होंने वो काम एक्सप्लोर किया होता है बहुत ज्यादा। और ऐसे लोग जो कि एक काम में माहिर होते हैं, एक काम में एक्सपर्ट होते हैं, उनको वो स्पेशलिस्ट कहता है। तो सारी डिबेट किताब में ये है कि जी जर्नलिस्ट वेस स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट अच्छे लोग हैं कि जी स्पेशलिस्ट अच्छे लोग हैं, दोनों अच्छे लोग हैं, राइट, दोनों कामयाब होंगे। लेकिन ऑथर का आर्गुमेंट ये है कि जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो ज्यादा जिंदगी में उनके कामयाबी के चांसेस हैं, ये ऑथर का मेन आर्गुमेंट है। एंड कैसे एक इंसान जर्नलिस्ट बन सकता है? एक इंसान जर्नलिस्ट ऐसे बन सकता है कि आप जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें ट्राई करें। गालिब के शेर का एक मिसरा है कि चश्मतम शायद कसरत नज़ारा से वाह हो, आपकी जो नजर की जो तंगी है वो शायद खुल जाए, वो ओपन हो जाए अगर आप दुनिया में मुख्तलिफ चीजें आप एक्सप्लोर करें। सो वो कहते हैं कि जब आप मुख्तलिफ चीजें लाइफ में ट्राई करें तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। फिर उसने काफी एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है, उसने काफी एग्जाम्पल्स दी हैं, काफी लोगों की लाइफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पेसिफिक उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी फलाना बंदा था, उसने ये चीजें एक्सप्लोर की तो वो ज्यादा कामयाब हुआ क्योंकि वो जर्नलिस्ट था। उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कि जर्नलिस्ट नहीं होते, जो कि लाइफ में सिर्फ एक मजमून को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो ऑथर कहता है कि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। और उसके लिए एक वो वर्ड यूज करता है सिंगल लूप लर्निंग, कि वो एक लूप में फंस जाता है। वो उसको आप अगर कोई थोड़ा सा भी डिफरेंट मसला दें, वो इस काबिल नहीं होता कि वो उस मसले को हल कर सके, क्योंकि उसने लाइफ में डिफरेंट चीजें कभी देखी नहीं होती, राइट। उसके माइंड में पैटर्न्स बन जाते हैं और उन पैटर्न्स को फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उस बंदे को फिर बाद में ये समझ नहीं आती कि इन पैटर्न्स को मैं कैसे ब्रेक करूं, राइट। और फिर उसने काफी रिसर्च फाइंडिंग्स, लोगों ने बड़ी तहकीक की है इस पर, जैसे कि एक तहकीक का जो कंक्लूजन है वो ये है कि द मेन कंक्लूजन ऑफ वर्क that took years of studying scientists and engineers, all of whom were regarded by peers as true technical experts, was that those who did not make a creative contribution to their field lacked aesthetic interest outside their narrow area. Simple आसान अल्फाज में मतलब ये कि जो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स थे इस स्टडी में, जो उनको जब स्टडी किया गया तो जिन लोगों की क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस नहीं थी, पता लगा कि उन्होंने कभी लाइफ में अपने डिसिप्लिन के अलावा बाकी चीजें एक्सप्लोर की भी नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर हम लोकल एक एग्जांपल लें तो हमारा अगर आप इंजीनियरिंग का करिकुलम देखें वो इतना रिजिड है, इतना वो लाइक उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। आपको उसमें लिटरेचर के कोर्सेज नजर नहीं आएंगे, आपको उसमें फिलोसफी के कोर्सेज नजर नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई जब वो ग्रेजुएट्स निकलते हैं तो उनकी थिंकिंग लीनियर होती है और वो एक ही लूप में फंस जाते हैं, वो दे कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो लोग कहते हैं। उसके बाद फिर उसने कुछ इंटरेस्टिंग लोगों की एग्जांपल दी हैं, जैसे कि क्लॉड शैनन। क्लॉड शैनन जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट बंदा रह चुका है हिस्ट्री में। एक बहुत फेमस लैब है, कुछ लोग जानते भी होंगे, MIT मीडिया लैब। उनके एक डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर बिट्स एंड एटम्स के। वो कहते हैं कि क्लॉड शैनन की जो मास्टर्स की थीसिस है वो द बेस्ट मास्टर्स थीसिस इन हिस्ट्री है। और उसने क्या किया था, उसने एक पेपर पब्लिश किया था, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अभी तक मुझे सही समझ नहीं आई। लेकिन उसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि उसने ये मालूम किया था कि एक जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है उसकी लिमिट कितनी है, उसको उसने मैथमेटिकली क्वांटिफाई किया था। तो आज जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल फोन के जरिए या मैं आपके साथ इवन जो कर रहा हूँ, सो आई थिंक वो उसी के फॉर्मूले के तहत होती है। ये क्लॉड शैनन ने उसका एक फॉर्मूला लिखा था और फिर उसकी थीसिस उस पर बेस्ड थी। तो काफी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने में, क्योंकि उसके रिलेटेड काफी मसले आ रहे थे, तो उसने जब वो किया तो वो सारे मसले ऑलमोस्ट हल हो गए। सो ऑथर ये क्लॉड शैनन की एग्जांपल देता है। वो कहता है कि क्लॉड शैनन जो है वो मैथ्स और फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट था, और भी वो काफी इंटरेस्टिंग चीज करता था, आप उसे सर्च करें। लेकिन उसने एक ये जो थ्योरी जब इसने ये बना रहा था, उसने एक फलसफे का कोर्स लिया था जिसमें उसने लॉजिक्स को पढ़ा था। लॉजिक्स 1 0
लॉजिक गेट्स और वो सारी चीजें जो आपने मैथ्स में कभी एक्सप्लोर की होंगी, उस पर उसने एक कोर्स लिया था और फिर कहा जाता है कि उस कोर्स की मदद से उसने ये थ्योरी बनाई थी। और वो कोर्स एक रिक्वायरमेंट थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में वो कोई डिग्री वगैरह कर रहा था, तो वो उसने आई थिंक एज अ इलेक्टिव शायद लिया था। इलेक्टिव्स पर भी बात करेंगे हम बाद में। तो उसकी वजह से उसे वो आइडिया आ गया। तो ऑथर ये बता रहे हैं कि अगर आप लाइफ में डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो आप क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे किसी इदारे में, किसी इंजीनियरिंग के इदारे में कोई बंदा कहे कि मैं फिलॉसफी पर कोर्स लेना चाहता हूँ? जुर्म है ये गुनाह है कि अगर आप कहें कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और मैं फलसफे को पढ़ना चाहता हूँ, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे, राइट? उसके बाद फिर स्टीव जॉब्स की एग्जांपल देता है। आई थिंक स्टीव जॉब्स ने सबसे आसान अल्फाज में क्रिएटिविटी की डेफिनेशन की, विच इज के क्रिएटिविटी इज कनेक्टिंग थिंग्स। अगेन वही बात को रीइंफोर्स कर रहा है। स्टीव जॉब्स ने इसको काफी मर्तबा इसको एक्सप्लेन किया था कि जी आप लाइफ में डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करेंगे तभी आपका माइंड चीजों को समझेगा, बिगर पिक्चर को समझेगा। तो इस पर भी हम एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। ये जितने लोगों की मैंने बात की, दे ऑल हैड रेंज, राइट? उन लोगों ने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर की थी। तो ये ऑथर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और ऑथर आपको ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लाइफ में डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर की, तो एक वर्ड साइकोलॉजी में यूज होता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोग जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करते हैं, वो कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको अगर आप कोई नया मसला प्रेजेंट करें, तो वो उनके माइंड में इतनी लचक होती है कि वो आपकी बात को थोड़ी बहुत समझ भी आ जाती है और वो आपके आपके साथ उस मसले को सॉल्व करने में शरीक हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं, ये तो मेरे डिसिप्लिन के रिलेटेड मसला नहीं है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अदब का स्टूडेंट है, उर्दू पढ़ रहा है, इंग्लिश, बीएस इंग्लिश पढ़ रहा है, मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, बट हमारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, अगर आप किसी भी रैंडम एक इंग्लिश स्टूडेंट से कहें या किसी भी मजमून के स्टूडेंट से कहें कि हम एक छोटी सी कोई डिवाइस बिल्ड करते हैं, तो चांसेस आर कि वो आपको कहेगा कि लाइक मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे उन कोर्सेज में जो मेकर स्पेस का कॉन्सेप्ट है, चीजें बनाने का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे अदब के कोर्सेज में शामिल नहीं है। और फिर जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनमें फिर अदब शामिल नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजें। और एक दूसरा वर्ड यूज करता है कॉग्निटिव इंट्रेंचमेंट, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के, कि इंसान की जो थिंकिंग है उसमें इतने लेयर्स बन जाते हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एबिलिटी उसमें से खत्म हो जाती है। उसने फिर केपलर की एग्जांपल दी है, केपलर पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने दो बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किए हुए, काइंड प्रॉब्लम, विक्ट प्रॉब्लम। काइंड प्रॉब्लम से उसका मतलब ये है कि ऐसे मसले जो कि स्पेशलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं, और विक्ट प्रॉब्लम ऐसे मसले जो कि थोड़े से डिफरेंट से हों, अनसर्टिनिटी ज्यादा हो, एम्बिग्विटी ज्यादा हो। और वो वही बात कर रहे हैं कि ये जो विक्ट प्रॉब्लम होते हैं जिसमें अनसर्टिनिटी ज्यादा होती है, जो कि आपने कभी सॉल्व नहीं किया होता, वो जर्नलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट लोग सॉल्व नहीं कर सकते। फिर एक दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी वो यूज करता है फ्रॉग विज बर्ड की। वो कहता है कि जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनकी मिसाल फ्रॉग की तरह होती है। फ्रॉग जो होता है वो बिगर पिक्चर को नहीं देख सकता, लेकिन बर्ड जो है वो बिगर पिक्चर को देख सकता है, ऊपर से चीजों को देख रहा होता है। तो वो ये कहता है कि मैं प्रेफर तो फ्रॉग बर्ड्स करता हूं, ऐसे लोग जो कि ऊपर से बिगर पिक्चर को देखते हैं, लेकिन वो फ्रॉग्स की भी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। तो वो ये कहता है कि ये दोनों ना आपस में इनको टीम्स में काम करना चाहिए। अगर ये दोनों टीम में काम करेंगे तो तभी अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। लेकिन वो ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं ऑथर के पूरे किताब से कि वो ये कहता है कि फ्रॉग्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा पुश करें और वो लाइफ में नई नई चीजें एक्सप्लोर करें। तो फ्रॉग जो लोग होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको वो आई शेप लोग कहते हैं, लाइक सिंपल आई, जो कि एक काम में माहिर होते हैं। और जो जर्नलिस्ट होते हैं जो कि ज्यादा डिसिप्लिन्स एक्सप्लोर करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनको वो टी शेप लोग कहते हैं, टी शेप, राइट?
यानी टी से आप ये मतलब ले सकते हैं कि वो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, और फिर जो नीचे जो लाइन है टी की, उससे आप ये मतलब ले सकते हैं कि वो एक किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो लोग आजकल दुनिया में टी शेप लोगों को प्रेफर करते हैं, जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन किसी डिसिप्लिन में वो स्पेशलिस्ट भी होते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। एंड फिर ऑथर ये भी कहता है कि जी डीप लर्निंग इज स्लो। इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे शख्स बनना चाहते हैं कि आप अदब को भी समझें, आप फलसफा को भी समझें, आप टेक्निकल चीज़ों को भी समझें, और आप माशरे में ऐसे लोग देखेंगे, पेशावर में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान बनने के लिए आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। वो अगर आप डीप लर्निंग चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर लर्निंग चाहते हैं, तो वो इतनी आसान नहीं है, उसमें वक्त लगेगा। उसमें डू वांट मी टू चेंज, अच्छा ठीक है, तो उसमें वक्त लगेगा। इस तरह नहीं होता कि जी आप एक साल में या आधे साल में आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग, आई थिंक उनकी मिसकंसेप्शन ये होती है कि आप कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो सरफेस लेवल पर चीजों को टच कर लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो जर्नलिस्ट बन गए। नहीं, वो नहीं होते, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट डेप्थ में जाना होगा। सो ये, और फिर अगर मैं एक सिंपल एक बात बताऊं, जो मैंने जितनी भी बुक की समरी बताई है, अ, मुझे ये लगा इससे कि दुनिया का एक सबसे मुश्किल काम ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मजामीन को एक्सप्लोर कर लिया, आपने डिफरेंट डिसिप्लिन्स को एक्सप्लोर कर लिया, तो आपके पास इल्म आ गया, लेकिन उन सारे इल्म को कनेक्ट करना, उस सारे इल्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उन अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना, उनसे कोई नए आइडियाज को बनाना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। वो एक दूसरा स्टेज है। तो पहला स्टेज ये है कि आप अपने अपनी एबिलिटीज इस काबिल बनाएं कि आप मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करें, आपकी थर्स्ट इतनी ज्यादा हो कि आप उनको एक्सप्लोर करें। उसके बाद फिर आप उन पॉइंट्स को कनेक्ट करें। कुछ पॉइंट्स साथ साथ कनेक्ट होते जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होते, राइट। आप अगर बायोलॉजी एक्सप्लोर करें, कोडिंग एक्सप्लोर करें, बाकी डिसिप्लिन एक्सप्लोर करें, उनमें इतनी जल्दी वो कनेक्शन नहीं बनता। तो वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, और ये एबिलिटी भी एक स्किल है, इसको भी सीखने में काफी वक्त लगेगा। इट्स ओके, इट्स ओके। आई थिंक आई कैन हाँ, 10 बार ट्राई। हाँ हाँ, हेलो हेलो, ازيك ده بس شباب आपको। तो ये पूरी समरी थी इस किताब की। सो अगेन ऑथर का आर्गुमेंट ये है कि आप जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करें। अभी मैं जो एक्सप्लेनेशंस दूंगा, जो अपने पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑथर का पूरा आर्गुमेंट है कि जी आप लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करें, इससे इस सारे डिस्कशन को, इन सारे पॉइंट्स को हमें लोकल लेंस से देखना होगा। मैं आपको 1 घंटा मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जी वो फलाना जो बंदा था ना, वो बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट था, उसने ये एक्सप्लोर किया था, वो किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब तक हम लोकल अपने इश्यूज को नहीं समझेंगे, लोकल इश्यूज को इस सारे आर्गुमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे कि हमारे, लेट्स से आपके शायद जहन में एक ये पॉइंट हो सकता है कि हमारे मुआशरे में जर्नलिस्ट क्यों नहीं है, हमारे तलीमी निज़ाम में क्या मसला है कि हम ऐसे लोग अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर पा सके ज्यादा तादाद में, राइट। तो मेरा ये मकसद है। तो मैं एक्सप्लेनेशन, ये जो पूरी एक एक एनालिसिस है, उसमें मैं 2 बातों पर डिस्कशन करूंगा। एक बात यह है कि हाउ कैन वन डेवलप रेंज, एक इंसान रेंज को कैसे डेवलप कर सकता है, राइट। पहला ये एक ये सवाल है, राइट। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि रेंज का एक इंसान की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है।
तो ये दो सवाल है, इन पर मैं फोकस करूंगा। तो पहले इस सवाल से स्टार्ट देते हैं कि एक इंसान अपनी रेंज को कैसे डेवलप कर सकता है। अच्छा, सो अब हम कुछ फंडामेंटल्स को कवर करते हैं कि रेंज को डेवलप करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होती हैं, कि इंसान को क्या ऐसी स्किल्स चाहिए होती हैं, कि इंसान को क्या स्टेप्स लेने होते हैं जो कि आपकी रेंज को वो डेवलप कर सकता है। क्योंकि मैं आपको अगेन वही बात कि मैं आपको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं कि जी आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करें, और आपने बहुत ज्यादा ये बात सुनी भी होगी कि लाइफ में मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करें, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो मैं स्टार्ट लेता हूं इस पॉइंट से कि रेंज को डेवलप करने के लिए सबसे, मेरे ख्याल से सबसे जो इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक इंसान को अपने टैलेंट्स और पैशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, एक इंसान की जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो तिश्नगी है उलूम को एक्सप्लोर करने की, वो पहले जागनी चाहिए, तब आप रेंज डेवलप कर सकते हैं। वरना तो आप एक दिन जोश में आकर डिसिप्लिन एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे दिन आप थक जाएंगे, राइट। अगर एक इंसान की क्यूरियोसिटी ही नहीं है तो वो कैसे मुख्तलिफ उलूम को एक्सप्लोर करेगा। तो ये पहला एक बहुत बुनियादी पॉइंट है कि अगर आप अपने आप में या आप मुआशरे में लोगों में रेंज डेवलप करना चाहते हैं, आपने उस शख्स की जो तिश्नगी है उसको जगाना होगा, उसकी क्यूरियोसिटी को आपने जगाना होगा। देखिए, हमारी सारी जिंदगी हम जो करते हैं हम क्यूरियोसिटी की बेस पर करते हैं, राइट। हम फील करते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूं, या मुझे ये काम अच्छा लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ, राइट। बाय फोर्स जो है हमें काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो एक तो पहले ये बात है, अगर आपकी क्यूरियोसिटी जाग गई तो इट मीन्स के आप दुनिया में अभी इंटरेस्ट लेंगे, आप बुक सर्कल्स आएंगे, आप और काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, आप यूट्यूब को देखेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप मुख्तलिफ रिसर्च लैब्स जाएंगे, आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि यार आप जो इस चीज पर काम कर रहे हो ये किस चीज के बारे में, मुझे ये जरा एक्सप्लेन करो, या मैंने आपसे फलाना सॉफ्टवेयर सीखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें, यानी मैंने कहा कि एक इंसान को अपने पोटेंशियल्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी उसकी क्यूरियोसिटी जाग सकती है और फिर उसके बाद वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है। सो उस पर सबसे ज्यादा दुनिया में मेरे हिसाब से एक बंदे ने काम किया, उसका नाम है सर केन रॉबिन्सन। सर केन रॉबिन्सन ने इस सवाल को पूरी लाइफ, पूरी उम्र इसी को एक्सप्लोर किया हुआ है कि एक इंसान अपनी एबिलिटीज को कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, और बहुत मुश्किल सवाल है। और इस पर अभी हम बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, दो उनकी बहुत फेमस किताबें हैं, द एलिमेंट, और फिर दूसरी जो उसकी किताब है सीरीज की, फाइंडिंग योर एलिमेंट। उस किताब में उसने इस सवाल को पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक इंसान अपनी जो उसकी जो जो एबिलिटीज होती हैं, पोटेंशियल्स होती हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, और अगर वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या वजह हो सकती है। सोसाइटी में कौन से ऐसे मसले होते हैं जिनकी वजह से एक शख्स अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा होता। इस पर इसने बहुत डिटेल डिस्कशन की। अगर आप उसके मजीद काम को करना पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक बहुत फेमस पॉलिसी की बड़ी मजे की किताब है, यूके गवर्नमेंट के लिए उसने लिखी थी, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ अगर यहाँ पर कोई एजुकेशन में इंटरेस्टेड है। तो उस तो सर केन रॉबिन्सन इस सवाल का जवाब ये देता है, और आपको काफी सारे लोग ये जवाब देंगे, लेकिन उसने बहुत मजे से चीजें एक्सप्लेन की है। वो कहता है कि अगर आप अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप दुनिया में अपने इर्द गिर्द यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स। वो कहते हैं मेरे साथ इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस सवाल के जो आपको कोई ये जवाब देता है कि जी आप मुख्तलिफ चीजें ट्राई करें, इसके ना दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक बड़ा चैलेंज ये है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह हम फिजिक्स में कहते हैं कि जी फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास की वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि जी टैलेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज द कलर ऑफ द पर्सन आइज, वाई जो है उसके बालों का रंग है, ब्ला 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 ब्ला, और आपको एंड में आ जाती कि जी ये बंदा जो है ये अच्छा पायलट बन सकता है, ये बंदा ये बन सकता है, एंड सो ऑन, राइट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप किसी को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते। और दूसरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ चैलेंज है वो ये है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो मेरा एक जो पुराना प्रोजेक्ट था स्तूरी, उसमें मैंने यही काम किया था, दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी इंसान की क्यूरियोसिटी को जगाना है। बहुत मुश्किल काम है। लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज होती हैं, आप किसी बच्चे को
एक्सपोजर दें, उसे आप कोडिंग के बारे में बताएं, उसे आप बायोलॉजी के बारे में बताएं, कभी कभी ना उस पर कुछ भी असर नहीं होता, बस उसकी क्यूरियोसिटी जाग नहीं रही होती, राइट? फैसिलिटीज होती हैं उसके पास, आप उसे डिफरेंट लैब्स लेकर जाएं, फायदा इवेंचुअली उसे होता है, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि जो आप बटन ऑन कर दें उसकी क्यूरियोसिटी आप एक्टिवेट करा दें, राइट? इट्स टू डिफिकल्ट। सो ये दोनों इसके साथ चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि सर केन रॉबिन्सन ने और भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हुए कि एक इंसान क्यों अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा होता। हमारे माशरे में बड़े मसले हैं, मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हम बाद में इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रेंज लाना है किसी इंसान में अपने आप में, तो उससे पहले शर्त यह है कि आपकी क्यूरियोसिटी जागी हुई हो, राइट? वरना तो वो बाय फोर्स आप अपने लाइफ में नहीं ला सकते। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी काफी लोगों की मैंने रिसर्चेस वगैरह पढ़ी हैं। इट्स दी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। ठीक है, खैर उम्दा से वो आप सबको आवाज आ रही है? अगर किसी को नहीं को तो आप काइंड यहाँ पे आ जाए। खैर दी कोशिश वहां पहुंच जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, apologies for the inconvenience. So आई वाज सेइंग कि क्यूरियोसिटी वाली जो बात थी कि किसी इंसान की क्यूरियोसिटी को जगाना बड़ा मुश्किल काम है, एंड फिर आप ये दोनों किताबें फर्दर अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। हम कुछ अब इस तरह भी ये भी इसका कोई हल नहीं है ना कि जी क्यूरियोसिटी को जगाना बड़ा मुश्किल काम है तो हम आराम से बैठ जाएं, राइट? ये भी तो कोई बात ना हुई ना। हम कुछ सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं, फेमस सॉल्यूशंस को, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, और मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि लोगों ने इस पर क्या क्या काम किया हुआ है कि अ, एक इंसान अपने टैलेंट्स को और अपने पोटेंशियल्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकता है। एक तो आप सर केन रॉबिन्सन का काम पढ़ सकते हैं, उसमें उसने एक किताब भी लिखी है क्रिएटिव स्कूल्स के नाम से। वो दुनिया के फेमस जो स्कूल्स हैं वहां से वो एग्जाम्पल्स उठाता है, और वो वही बात कहता है कि जी आपका जो जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम क्या है कि जी 8 बजे आप आ जाएं, आपका 9 बजे दूसरा पीरियड, 10 बजे अगला, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर बच्चे चले जाते हैं, वो उसी सिस्टम के खिलाफ है। एंड वो एक एनोलॉजी देता है कि जिस तरह हम अपने प्लांट्स को उगाते हैं, प्लांट्स के लिए हम इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, हम उसे पानी देते हैं वक्त पर सनलाइट और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो कहता है कि हमें अपना तालीमी निज़ाम इस तरह करना चाहिए कि ये मॉडल हमारा होना चाहिए, जिस तरह हम प्लांट्स की केयर करते हैं हमें उस तरह अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत फेमस थ्योरी है, मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो कि एक सोल्यूशन हो सकता है कि एक इंसान की क्यूरियोसिटी या एक बच्चे की क्यूरियोसिटी हम उस सोल्यूशन के थ्रू जगा सकते हैं। और उस थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो। एक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, होवर्ड गार्डनर उनका नाम है, और उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की 1983 में। उन्होंने कहा कि हमें अपना तालीमी निज़ाम इस थ्योरी के जाविये नज़र से हमें बनाना चाहिए, तो तभी हमारे बच्चे जो हैं वो उन्हें अपने टैलेंट्स के बारे में पता लगेगा, और वो क्यूरियस होंगे, और लाइफ में वो फिर मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे एंड मसले सॉल्व करेंगे। और इंटेलिजेंस की जो तारीफ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तारीफ, शॉर्ट हिस्ट्री उसकी ये है कि 1904 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक साइंटिस्ट को, एक साइकोलॉजिस्ट को एक टास्क दिया कि आप हमारे लिए एक ऐसा टेस्ट बनाएं कि उस टेस्ट के जरिए हम अपने बच्चों की इंटेलिजेंस को, जहानत को मेजर कर सकें कि जी ये बच्चा समझदार है, ये बच्चा समझदार नहीं है। तो उसने एक शॉर्ट सा टेस्ट बनाया जिसमें इंग्लिश और मैथ्स के सवाल थे, जिन्हें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। जब आप इंग्लिश के सवाल जब हल करते हैं, आपने देखे होंगे, और जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको वो लोग
मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहा करते थे। तो वो दोनों इंटेलिजेंसेस के सवाल उस टेस्ट में थे, और उसने फिर ये कहा था कि ये आप इनसे बच्चों की जहानत तो मेजर करें, बट ये एक अच्छा टूल नहीं है एक बच्चे की ओवरऑल जहानत को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद वो टेस्ट इवॉल्व होता गया। स्टैनफोर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट ने उस टेस्ट को थोड़ा बहुत ट्वीक किया, उसने अलग अपना टेस्ट बनाया। फिर इस तरह उस टेस्ट के बड़े वर्जन्स मॉडल्स बनते गए। वर्ल्ड वॉर टू में जब यूएस अपने ये आर्मी वाले लोगों को हायर करने करने की थी, तो उन्होंने वो टेस्ट वहां पर इस्तेमाल किया। लोग वो टेस्ट देते, उसके बाद उनकी हायरिंग होती थी। उस टेस्ट में भी लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की ही सवाल थे। और अगर आप देखें हमारे जो अपने जो पीएफ और आर्मी की टेस्ट हैं, उसमें भी आपने लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो वो इसकी हिस्ट्री वो है। तो हमारी जितनी भी टेस्ट हैं, आपको वही दो पोर्शंस उसमें यूजुअली नजर आएंगे। फिर उसके बाद लोगों ने उस थ्योरी के बड़े डिफरेंट वर्जन्स निकाले। लोगों ने कहा कि यार ये बहुत जुल्म है कि आप 2 या 3 इंटेलिजेंस से एक इंसान की जहानत को मेजर करते हो। एक इंसान है, वो अच्छा आर्टिस्ट है, और अगर उसके साइंस में कम नंबर आते हैं, तो आप उस आर्टिस्ट को कहते हो कि आप नालायक हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर उसके साइंस में कम नंबर आते हैं, लेकिन वो आर्ट्स तो अच्छा बना रहा है ना, तो आप उसे कैसे कह सकते हो कि आप ज़हीन नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो लोगों ने जब इसके डिफरेंट वर्जन्स बनाए, तो ये हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट ने एक बड़ी मजे की थ्योरी निकाली, और उसे उसने नाम दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और उसने कहा कि इंसान की जो जहानत है, वो सिर्फ एक नहीं है। इंसान के अंदर 8 जहानतें। एक उसने कहा कि कुछ लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। ऐसे लोग जो कि लिखारी होते हैं, जर्नलिस्ट हो गए, उन लोगों में जो इंग्लिश के या उर्दू के लिखारी हो गए, जो भी हो गए, उन लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। फिर उसने कहा कि एक इंटेलिजेंस होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये साइंटिस्ट में पाई जाती है, फिलोसफर्स में पाई जाती है। फिर एक उसने कहा कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो कि धुन को समझते हैं, जो कि म्यूजिक को समझते हैं, ये उन लोगों में होती है। फिर ऐसे लोग जो कि बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें होती है, जो कि स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं। बॉडी को यानी जो जो जितने भी स्पोर्ट्स हो गए, वो सारे इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। फिर एक दूसरी इंटेलिजेंस है जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। अगेन इसमें भी जर्नलिस्ट आ सकते हैं, या पॉलिटिशियंस इसमें आ सकते हैं। फिर एक इंटेलिजेंस ने डिफाइन की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो कि दिमाग को सही समझते हैं, यानी साइकोलॉजी को समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए। फिर एक दूसरी इंटेलिजेंस ने डिफाइन की विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि आर्ट्स, पेंटिंग, विजुअल्स को, विजुअल लिटरेसी उनकी अच्छी होती है, वो इन लोगों में ये जहानत पाई जाती है। और फिर एक आखिरी उसने डिफाइन की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसे लोग, अगर आपको नेचर के साथ शौक है तो आप में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। उसने कहा कि हमें एक इंसान को मखसूस एक मैथमेटिकल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के जाविया नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर किसी इंसान में स्पोर्ट्स की एबिलिटीज हैं, तो वो इंसान भी ज़हीन है। अगर किसी इंसान में आर्ट्स की एबिलिटीज हैं, वो भी ज़हीन है। अगर किसी इंसान में कम्युनिकेशन की एबिलिटीज हैं, वो भी ज़हीन है, राइट। तो उसने कहा कि हर इंसान के अंदर ये आठों की आठों जहानतें पाई जाती हैं, और इन जहानतों के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ लोगों में विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस डोमिनेंट होती है। अब पिकासो में विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस डोमिनेंट थी। कुछ लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस डोमिनेंट होती है। तो आइंस्टाइन में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस डोमिनेंट थी। तो उसने कहा कि हमें अपना जो क्लासरूम है, हमें जो अपना पूरा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा करिकुलम है, हमें इस इंटेलिजेंस के एंगल से एक डिजाइन करना चाहिए। तो अगर आप एक एक क्लासरूम में कोई लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, लेट्स से इंग्लिश का लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो यूजुअली ये होता है ना कि उस्ताद आता है, वो पढ़ता है, उसके बाद चला जाता है, यही होता है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डाइवर्स बनाना चाहते हैं, अगर आप बच्चों को थोड़ा सा मौका देना चाहते हैं कि बच्चे रीडिंग के साथ या राइटिंग के साथ और एक्टिविटीज करें, तो उसका एक मॉडल ये हो सकता है कि जब आप बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करें, जैसे आप उन्हें कोई कहानी पढ़ाएं, तो आप उन्हें 20 मिनट बाद लेट्स से ये कहें कि जो कहानी मैंने आपको पढ़ाई है, उस कहानी के बेस पर एक विजुअल बनाएं। तो आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो कि विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस का शौक रखते हैं, तो वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे। और फिर शायद आप क्लास के एंड में ये कह सकते हैं कि आपने जो कहानी लिखी है और आपने जो अपनी ड्राइंग्स बनाई है, वो एक दूसरे के साथ आप शेयर करें,
ताकि आपकी जो पीयर्स हैं वो एक दूसरे से सीखें। तो ये आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अपने लेसन प्लान में ला रहे हैं। बात कहने का मकसद ये है कि इस तरह काफी लोगों ने डिफरेंट थीरीज प्रेजेंट की, लेकिन सबसे जो फेमस थीरी मुझे जो अच्छी लगती है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थीरी है, जिसके जरिए आप किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी को जगा सकते हैं। क्योंकि आप बच्चे को मौका दे रहे हैं, आप बच्चे को लिमिटेड एक एंगल से नहीं देख रहे। अभी भी हमारे मुआशरे में आप देखें कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि जब उनके बच्चे घर आते हैं, उनके भाई बहन घर आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब उनके वो मार्क्स देखते हैं कि जी आपके तो उर्दू में लेट्स से 100 में 70 मार्क्स है, तो कहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके तो साइंस में कम मार्क्स हैं। या अगर उनके साइंस में अच्छे होते तो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, उर्दू में 100 में आपके 70 आ गए तो क्या हुआ, लेकिन साइंस में तो आपके 95 हैं, राइट। तो हम अब भी अपने बच्चों की जो एबिलिटीज हैं वो एक तंग नजरी से देख रहे होते हैं। और इसी तंग नजरी की वजह से बच्चों की जो थिंकिंग है वो लीनियर थिंकिंग हमने क्रिएट कर दी है। लीनियर थिंकिंग की वजह से मसला ये है कि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं वो कम हो गई हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आपकी एबिलिटी माशरे में लोगों की कम हो जाती है तो इनोवेशन नहीं होती, नो, राइट। तो ये एक पूरा एक चेन है जो कि हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे। उसके अलावा एक क्विक मैं एक चूंकि मैं एजुकेशन में काम करता हूं तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ मॉडल्स हैं जो कि लोग आजकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक मॉडल है उसे लोग पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं, अगर आपने इसका नाम सुना है। तो अगर आपने खान एकेडमी का नाम सुना है तो खान एकेडमी का जो फाउंडर है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल चला रहा है, उसका नाम है खान लैब स्कूल, राइट। और खान लैब स्कूल का मकसद ये है कि हर बच्चे को पर्सनलाइज्ड तालीम मिले। इसका आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो 5th क्लास में है, तो 5th क्लास के बच्चे को, अब हर बच्चे को तो मैथ्स पसंद नहीं होती ना, हर बच्चे को तो साइंस पसंद नहीं होती। तो आप उसका करिकुलम इस तरीके से डिजाइन करें कि वो बच्चा खुद अपने हफ्ते का कोर्स करिकुलम बनाए कि मैं इस हफ्ते में ये चीजें कवर करूंगा। और ऑब्वियसली ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड करिकुलम अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी स्कूल में, तो आपके पास जब तक टेक्नोलॉजी ना हो तो आप नहीं नहीं कर सकते, राइट। तो उनके साथ, बच्चों के साथ लैपटॉप्स होते हैं, बट सारा दिन बच्चे लैपटॉप्स पर काम नहीं करते। उनका पूरा एक मॉडल है, वो स्कूल हमारी तरह 1-2 बजे बंद नहीं होता, वो 5-6 बजे बंद होता है। तो 1 बजे तक वो अपने करिकुलम को सीखते हैं जो उन्होंने डिजाइन किया होता है कि मैं इस हफ्ते मैथ्स का फलाना एक्सरसाइज सीखूंगा, इंग्लिश, जियोग्राफी, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद फिर 1-2 बजे के बाद यूजुअली वो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को सीखते हैं। हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं ये वाला सॉफ्टवेयर सीखूं या ये चीज सीखूं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी क्यूरियोसिटी हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि 1-2 बजे वो घर जाते हैं और वहां पर भी उनको फिर वही ट्यूशन और सारा दिन वही किस्सा स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो पहला जो पोर्शन था कि हाउ कैन वन डेवलप रेंज, तो वो ऐसे हो सकता है कि आप बच्चों को एक्सपोजर दें, लेकिन मैंने आपको कुछ अब स्पेसिफिक मॉडल बताए कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है या फलाना एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये सवाल मुझे बड़ा तंग करता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं अगर इतने सालों से, या कुछ लोगों ने तो सारी उम्र इस पर काम किया, जैसे सर केन रॉबिन्सन, कि अगर आपने इतने सालों इस पर काम किया और आपने अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला कि किसी किसी इंसान की हम क्यूरियोसिटी को कैसे जल्दी अवेक कर सकते हैं, राइट। लाइक कोई क्विक सोल्यूशन है इसका? so एक क्विक सोल्यूशन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा सोल्यूशन मेरे माइंड में एटलीस्ट एक आया हुआ है, और वो है मेटावर्स का। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मेटावर्स को एक्सप्लोर किया हुआ है। इफ यू कैन रेज योर हैंड्स। अच्छा। हम्म। ठीक है, ठीक है। मैं इस सोल्यूशन को क्विकली एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेटावर्स के बारे में कुछ लोगों के बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं। मेटावर्स क्या चीज़ है, आसान अल्फाज में काफ़ी बातें, लेकिन आपने एक डिवाइस देखी होगी जो कि लोग इस तरह पहन लेते हैं, और उस डिवाइस के अंदर एक 3D जनरेटेड वर्ल्ड होती है।
उसमें आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें आप स्पेस पर जा सकते हैं, उसमें आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, उसके अंदर लैब्स होते हैं, आप साइंस के एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, आप उसमें जो भी आपके इमेजिनेशन में अभी आ रहा है वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं कि चूंकि लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया होता तो लोगों को वो बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा होता, वो कहते हैं यार ये मजे का नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको खुद ही पर्सनली एक्सप्लोर करते हैं और जब आप एक अच्छे हेडसेट को एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे क्वालिटी वाले हेडसेट को, तो आपको फिर अंदाजा हो जाता है कि मेटावर्स कितना इमर्सिव है। आप उसमें कितना पढ़ जाते हैं, कितनी चीजें आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने ओculus Quest 2 एक्सप्लोर किया हुआ है, जो कि फेसबुक का वो भी पुराना मॉडल है। वो भी कोई नया मॉडल नहीं, अब तो फेसबुक के या मेटा के अब तो और भी मॉडल्स आ गए। सो वो एक सोल्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो है नहीं इधर के हम सारे उसको एक्सप्लोर करें। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जरा फर्दर गूगल पर सर्च करें कि मेटावर्स एक इंसान की क्यूरियोसिटी को अवेक करने में कैसे हेल्प कर सकता है। मैं उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, वो आप ही कर लें। कंक्लूजन, टू डेवलप रेंज इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि आप एक इंसान की पहले क्यूरियोसिटी को जगाएं, तभी वो मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। सेकंड पार्ट, रेंज का इंसान की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक सवाल जो कि मैं कई अरसे से मैं सोच रहा होता था, उसका फिर मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम जवाब मिला। वो सवाल ये है कि, और वो बात मैं सुनता आ रहा था काफ़ी बचपन से, यू कैन से, कि लोग कहते थे कि साइंटिस्ट्स को चाहिए कि वो आर्ट्स एक्सप्लोर करें और आर्टिस्ट को चाहिए कि वो साइंसेस एक्सप्लोर करें, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे कि क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, रेंज के अगर एंगल से हम देखें तो एक 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 सरफेस लेवल का आंसर ये हो सकता है कि जब आप अगेन वही डिफरेंट चीज एक्सप्लोर करते हैं तो आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं। लेकिन स्टिल मैं इस बात को ना कॉन्शियसली नहीं समझ पा रहा था कि यार एक शायर को साइंसेस क्यों एक्सप्लोर करनी चाहिए, एक साइंटिस्ट को शायरी क्यों एक्सप्लोर करनी चाहिए, उससे क्यों म्यूजिक एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे ये बात कॉन्शियसली समझ नहीं आती थी, मैं हमेशा इस चीज पर सोचता रहता था। लेकिन इवेंचुअली फिर मुझे कुछ आंसर्स मिलना शुरू हुए, एंड वो मैं यानी बात का ताल्लुक अगेन रेंज के साथ है कि अगर आप जब डिफरेंट चीजें लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं तो एक तो वही पॉइंट है कि आपको आइडियाज मिलते हैं, लेकिन व्हाट एल्स, आपको और क्या मिलता है उसमें। क्या ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि जब आप प्रॉपर एक सीरियस लेवल पर रेंज के जोन में इंटर हो जाते हैं, जब आप एक ऐसे शख्स बन जाते हैं जो कि सुबह तो म्यूजिक के बारे में सोच रहा होता है लेकिन शाम को साइंस के बारे में सोच रहा होता है, और फिर जब रात को सो रहा होता है तो वो फिर इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा होता है, इसका आपके जिंदगी पर इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइडियाज की तो समझ आती है, वो तो आप लोग सारे माशाल्लाह, आप लोग भी काफी आइडियाज पर काम कर रहे होंगे। कोई एनिमेशंस पर काम कर रहा होगा, वो कहेगा कि जी वो फलानी मूवी मैंने देखी थी, वहां से मैंने आइडिया लिया और फिर उसे अपनी एनिमेशन में मैंने इनकॉर्पोरेट किया। कोई कहेगा कि जी मैंने वो फलाना आइडिया देखा था और फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट में उसे इनकॉर्पोरेट किया। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि रेंज का असल में क्या इम्पैक्ट होता है। और ये मेरा आइडिया है, ये जरूरी नहीं है कि ये यही आइडिया है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी रास्ते हैं जो कि आपके माइंड में शायद आ भी जाएँ या बाद में आ जाएँ। सो हम इसको समझने के लिए हम जो जो रेंज का जो प्रोसेस है, उसको हम 2 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। या क्रिएटिविटी को हम 2 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ा-सा शायद आपको तंग करे ये कॉन्सेप्ट, बट अगेन हमने अपने आप को थोड़ा-सा कंफर्ट जोन से हटाना है, राइट। मैं पर्सनली क्रिएटिविटी को 2 लेवल्स में डिवाइड करता हूँ अपनी आसानी के लिए। मेरा कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, राइट। लेकिन अपनी आसानी के लिए एक है लेवल 1 की क्रिएटिविटी। मैं लेवल 1 की क्रिएटिविटी उसको कहता हूँ कि आप जब अपने डेली लाइफ में जब रेंज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेट्स से आप सदर बाजार में जा रहे हैं, आपने किसी बंदे को देखा वो कोई मशीन पर कोई चीज बना रहे हैं और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप कहें कि यार ये बंदा तो लेथ मशीन पर काम कर रहा है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल यूज कर रहा है, मेरा भी प्रोजेक्ट डिजाइन का या आर्ट्स का इसी इसी किस्म का है, मैं इससे ये वाला आइडिया उठाता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करता हूँ। तो एक तो ये वाली क्रिएटिविटी है कि हम अपने इर्द गिर्द जिंदगी में
लोगों को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, रिसर्च लैब्स जाते हैं और वहां से आइडियाज पिक कर लेते हैं और अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, राइट? सो इसे मैं लेवल 1 की क्रिएटिविटी कहता हूँ कि आप चीजें आप चीजें देख रहे हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं लाइक अ स्पंज, एंड आपके माइंड में वो बैठ जाती हैं, या तो आप फौरन उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, सबकॉन्शियसली वो आप अपने माइंड से निकालते हैं, या आप एक अरसे बाद, 1 साल के बाद, 2 सालों के बाद आप कहते हैं वो हाँ फलाना आइडिया मुझे याद है, वो सॉफ्टवेयर मुझे याद है, वो सॉफ्टवेयर मैं अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, राइट? इसके लिए हम 30 सेकंड सर्कल डेडिकेट कर लेंगे, बट क्विक आंसर्स। भाई ने मेटावर्स की बात की, बिल्कुल दैट्स ट्रू। आप लोग उसे जरूर एक्सप्लोर करें, विश कि हमारे पास इतना टाइम हो कि हमने उस पर बात कर लेते। खैर, थैंक यू फॉर दैट पॉइंट। दूसरा हमजा ने कहा कि so हमजा, जो जिस सिस्टम की बात करें वो सिस्टम तो कम्प्लीटली पहले ख़त्म होना चाहिए। उस सिस्टम में वो पहले ख़त्म होगा तो तब हम नया कुछ बनाएंगे, तो उस पर फिर बात की जा सकती है। और मैंने एक इशारा भी किया कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बेस पर वो पूरा पिलर्स खड़े होने चाहिए। तो आपका शॉर्ट आंसर ये है, बट उस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। और आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे, 20-30 पूछे होंगे बट खैर, असल में स्टीव जॉब्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। अगर आपने उसके बारे में चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो मेरे पास लैपटॉप में उस पर 13 जीबी डाटा पड़ा है। आप उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उसने काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक्सप्लोर की थी। और जैसे शफीक भाई ने एग्जांपल दी कि उसका काम यही था कि वो बिगर पिक्चर को देखता था और उसके बेस पर वो डिसीजंस लेता था। तो उसने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वो सारा दिन यही करता था, उसका कोई और काम नहीं होता था। कभी किसी लैब जाता था। एक आपको मैं फेमस एग्जांपल्स क्विक दूँ कि शुरू में जब एप्पल का ऑफिस था तो उनके फर्स्ट फ्लोर पर सोनी का ऑफिस था। तो एप्पल के काफ़ी प्रोडक्ट सोनी से भी इंस्पायर्ड हैं। आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स में ग्रेइश लुक्स देखे होंगे और आपने सोनी के प्रोडक्ट्स में भी ग्रेइश लुक्स देखे होंगे। तो वो वहाँ पर रोज़ाना जाता था और वहाँ उनके प्रोडक्ट्स से इंस्पिरेशन लेता था। हम सारा दिन यही काम करते हैं, रीमिक्स बनाते हैं। एप्पल के अपने प्रोडक्ट्स भी ओरिजिनल नहीं हैं, उन्होंने भी काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। और बाकी जो आपने सवाल पूछे उस पर तो काफ़ी डिबेट हो सकती है। जो आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की, कुछ लोग ये मानते हैं कि जी पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, कुछ लोग नहीं मानते। आई थिंक इस पर हम काफ़ी शायद फॉलो अप एक सेशन करा लें या बाद में आफ्टर द सेशन इसको डिस्कस कर लें। लेकिन अच्छे सवाल आपने पूछे, क्योंकि टाइम कम है तो हम उस पर वो बात से बात फिर आगे चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम सर के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, उसके बाद शफीक साहब की और आप तमाम शुरका की। मेरी तो बदकिस्मती ये है कि किताब को पढ़ने से महरूम रहा। खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे आपके सवालात भी सुने और जवाबात भी सुने। कुछ सवालात जो है वो जवाबात भी थे। बहरहाल शफीक साहब ने जो ये इनिशिएटिव यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है, जिसका आउटपुट जो है वो ज़ाहिरी तौर पे नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि एक सोच है, एक फ़िक्र है और माशाअल्लाह हमारे जवान जो हैं वो उसी को सामने ला रहे हैं और ये हमारे मैसेंजर्स बन रहे हैं और ये चीज़ जो है वो घरों में भी जा रही है, मुख्तलिफ सर्कल्स में भी जा रही है। जहाँ तक बात चल निकली कि इस्लामिक वर्ल्ड की बात हो गई या मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो गई या आजकल की जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो गई, ज़ाहिर है कि हम कॉलोनी रहे हैं और ये जो शफीक साहब ने कहा कि हमें डराया धमकाया गया है और वो चीज़ जो है वो हमारी सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। अभी भी हम अपने बच्चों को, छोटों को डरा रहे हैं। जब कहीं हुज्र में बैठे हैं, हमारे पास तो एक इदारा है, उसके कहते हैं बात नहीं करना, खामोश हो जाएँ, आपने पूछना नहीं है। तो हमने एनकरेज करना है और ये जो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का भी इश्यू है, अब तो ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका एक एक्सप्लोजन आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वेस्टर्नाइज़ तो हो गए, मॉडर्नाइज़ नहीं हो गए। यानी हमारा जो ये तरक्की का सफ़र है, ये फ़ेज़ वाइज़ नहीं है, एब्रप्टली हमारे पास चीज़ें आ गई और हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल है। जहाँ तक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की इसकी बात करते हैं तो समीर साहब ने भी उसकी बात की कि हमारे जो मदारिस हैं, जो दरस निज़ामी का निसाब है, जो आज से सैकड़ों साल पहले बना है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी एक स्टेगनेंसी और जमूद है। लेकिन जो लोग उस वक़्त थे, जो साइंटिस्ट थे, तो वो मज़हब को भी समझते थे और तिब को भी समझते थे और फ़लसफ़ा को भी समझते थे। जैसे आप इब्न रुश्द को ले लें,
अब वो अलग बात है कि उनको फिर किस तरह सज़ा दी गई या किस तरह इग्नोर किया गया, ओवरलुक किया गया। इसी तरह अपनी इब्न सीना को देखें तो आप फ़ाराबी को देखें, यानी फिर हमारे यहाँ एक नैरेटिव ये भी है कि इमाम गज़ाली के दौर में फिर हमारा तरक्की का सफ़र जो है वो रुक गया मंतिकी अंदाज़ में, क्योंकि उनका रुझान जो है वो फ़लसफ़ा की बजाय या रीज़न की बजाय मज़हब की तरफ ज़्यादा हो गई और स्पिरिचुअलिटी जो है वो ज़्यादा आ गई। तो जो बहस यहाँ पे हुई, जो सवालात यहाँ पे रेज़ किए गए, मेरे ख़्याल से हम सर की भी मशकूर हैं और आप लोगों की भी, और ख़ुसूसन शफ़ीक़ साहब की, कि इस तरह के मवाक़े फ़राहम करते रहते हैं। और मैसेज मेरा ये है, तजवीज़ मेरी ये है कि इस तरह की अ, बहसें जो हैं ये अपने घरों में करने चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी कुली के साथ, और ज़माने के जो नए अतवार हैं, हमें हमारी तैयारी उसके लिए होनी चाहिए कि उसके लिए हम हर लेवल पे तैयार हों। और इस तरह के मौक़े जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाए, कि जब तक हमारी प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी ना हो, तो मेरे ख़्याल से इस तरह के डिस्कशंस, इस तरह के सर्कल्स हमें नई दुनियाओं की सैर करा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपके आने का। इंशाल्लाह हमारा अगला सर्कल अगस्त 12 तारीख को होगा, हफ्ते के दिन।